ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ترکی اور سیریا کو دھمکی دینے والے اسرائیل کو اب پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اسرائیل ترکی سے معافی مانگ رہا ہے اور چپکے سیریا کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے. ادھر سیریا نے بھی اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ معاہدہ اور ایگریمنٹ اب ہماری شرطوں کے مطابق ہوگا اور اسرائیل جو چاہتا ہے ویسا نہیں ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں سیریا کے ایک فوجی اڈے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، بات ہے 18 اگست کی، اور اس کے بعد اسرائیل کی آرمی نے، اس کی میڈیا نے، اس کے پرائم منسٹر نے پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسرائیل ابھی بھی مڈل ایسٹ میں، خطے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ اپنے آس پاس کسی بھی ملک کی آرمی کو مضبوط نہیں ہونے دے گا، اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو وہ مضبوط نہیں بننے دے گا، اور اگر کوئی ملک اس کی مدد کرنا چاہے گا تو اس پر بھی اسرائیل حملہ کرے گا. اسرائیل اتنا طاقتور ہے. اور ترکی نے اسرائیل کو صرف اس کا خاموشی کے ساتھ جواب دیا، اور ترکی کا جواب اتنا طاقتور تھا کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا. اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی گہار لگائی، اور اس کے بعد آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی ثالثی میں، اردن کی میزبانی میں سیریا اور اسرائیل کے ڈیلیگیشن کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب تک اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سیریا کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور گولان ہائٹس پر جہاں اسرائیل کی فوج موجود ہے وہاں پر اس کی فوج موجود رہے گی. اسرائیل اپنی فوج کو واپس نہیں بلائے گا. یہ اسرائیل کی طرف سے کنٹینیو کہا جا رہا تھا. لیکن 18 اگست کو جب سیریا کے فوجی اڈے پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور پھر اس نے ترکی کو دھمکانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ترکی نے اسرائیل کو دھمکی دی. اور وہ کیا دھمکیاں تھی پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے آپ کو بتا رکھا ہے. پھر امریکہ کی انٹری ہوتی ہے اور امریکہ نے اسرائیل کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، ترکی کا ملک شام کے ساتھ اچھا رشتہ ہے، پرانا تعلق ہے، اور ترکی لگاتار سیریا کی مدد کرے گا، اور امریکہ ترکی کو سیریا کی مدد کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی اس موضوع پر تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے. امریکہ جانتا ہے کہ ترکی نے بشار الاسد کا تختہ پلٹنے میں کردار ادا کیا، ترکی نے احمد الشرع کی حکومت کو قائم کرنے میں کردار ادا کیا. اور اب جو سیریا کی آرمی آرگنائز ہو رہی ہے، منظم ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی جو سیریا میں آ رہی ہے، تو ان سب کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ ہے. ترکی ایسا کرے گا. ادھر امریکہ نے بھی سیریا پر جو پابندیاں تھی اس کو ہٹا دیا. جیسے سیریا بلیک لسٹ کنٹریز میں شامل تھا، امریکہ نے اس کو ہٹا دیا. اسی طرح سیریا کا شمار دہشت گرد دیشوں کی فہرست میں ہوتا تھا، امریکہ نے اس کو ہٹا دیا. احمد الشرع کے سر پر جو انعام رکھا گیا تھا اس کو ہٹا دیا. امریکی صدر نے ملاقات کی، اس کے بعد سعودی عرب نے لگاتار سیریا کی مدد کی، ترکیہ نے مدد کی. اب جو تازہ ترین رپورٹ ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے ایک آرٹیکل بھی تفصیل سے شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ ترکی کا سیریا میں کئی فوجی اڈہ پہلے سے موجود ہے. خاص طور پر ادلب کے علاقے میں، حمص میں اور دمشق میں ترکیہ کی فوج پہلے سے پائی جاتی ہے. ترکی کا فوج اڈہ بھی وہاں پر موجود ہے، ترکیہ کا فائٹر پلین وہاں پر موجود ہے. عرب ترکیہ نے سیریا کے کئی علاقوں میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تعینات کرنا شروع کر دیا ہے. خاص طور پر ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے SIPER جو نیا دفاعی سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو سیریا کے کئی علاقوں میں اس نے تعینات کر دیا ہے جو علاقہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے، اسی طرح ترکیہ سے ملا ہوا ہے. تو نارتھ سیریا میں اور اسرائیل سے جو علاقہ سیریا کا ملا ہوا ہے وہاں ترکیہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے لگاتار سیریا کو مضبوط کر رہا ہے. ترکیہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کا مطلب وہاں یہ ہے، اور یہ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے، جو اسرائیل کا اخبار ہے، کہ اگر اسرائیل کا کوئی جہاز سیریا کے ایئر اسپیس سے گزرے گا تو اب ملک شام کی ایئر فورس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اسرائیل کے جہاز کو مار گرائے، اس کو روک دے، اس کو نہ جانے دے. اب تک یہ ہو رہا تھا اور بشار الاسد کی حکومت کے زمانے سے کہ سیریا کا جو ایئر اسپیس ہے وہ بالکل خالی تھا. سیریا کی جو ایئر فورس ہے اس کے اندر بالکل بھی قابلیت نہیں تھی. سیریا کے پاس کوئی بھی مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ لگاتار اسرائیل سیریا کے ایئر اسپیس کا وائلیشن کر رہا تھا. جب اسرائیل چاہتا تھا اپنے جنگی جہاز کو سیریا کے آسمانوں سے اڑاتا تھا اور وہ ایران پر حملے کرتا تھا، کہیں اور جا کر بم گراتا تھا،
اور सीरिया की एयर फोर्स उसको नहीं रोक पा रही थी। अब तुर्किया ने जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात कर दिया है तो इसराइल के जंगी जहाज सीरिया के आसमानों से क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं गुजर सकते, और अगर जाएंगे तो उसे मार गिराया जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने बाज़ाब्ता लिखा है और इसराइल चाह रहा था कि ये न हो और इसीलिए उसने एक फौजी अड्डे पर बराए नाम हमला कर दिया। तुर्किया ने धमकी दी तो अमेरिका से उसने मदद की गुहार लगाई कि अगर तुर्की इजराइल के खिलाफ कुछ फैसले कर लेता है, जैसे तुर्की ने इसराइल को पहुंचने वाली तेल को अगर बंद कर दिया जो पाइपलाइन से अजरबैजान के जरिए मेडिटेरियन सी में पहुंचती है और वहां से इसराइल को तेल पहुंचता है, तो इसराइल एक तरह से भूखा मरने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह तुर्की नेटो का मेंबर है और अगर तुर्किया के किसी भी मफाद पर उसने हमला किया तो यूरोप के देशों के साथ इजराइल का रिश्ता खराब हो जाएगा, अमेरिका भी बचाने नहीं आएगा। तो इन सबको सामने रखते हुए अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया और कहा कि तुर्किया के मामले में अमेरिका तुर्किया के साथ ही रहेगा, तुर्किया के खिलाफ नहीं जाएगा। इसी तरह अमेरिका सीरिया के साथ भी है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि खित्ते में अमन रहे, सलामती रहे, तो बातचीत के जरिए मसले का हल निकालो और सीरिया पर हमला करना बंद करो। चुनांचे कल की खबर यह है कि अमेरिका की सालिसी में उर्दुन में सीरिया के वफद की और इसराइल के वफद की मुलाकात होती है, बातचीत होती है। सीरिया के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे सीरिया के वज़ीर ख़ारजा असद अश-शेबानी और इसराइल की तरफ से जो लोग डेलीगेशन में मौजूद थे उसमें मुसाद के सरबराह का नाम भी शामिल है, दूसरे अहम तरीन जिम्मेदारों का नाम शामिल है। और जब बातचीत हुई तो इस मीटिंग को इसराइल ने खुफिया रखने की कोशिश की। इसराइल की हुकूमत नहीं चाहती है कि इसराइली अवाम को पता चल सके कि इसराइल की हुकूमत सीरिया के साथ बातचीत कर रही है। और वजह यह है कि इसराइल में इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन है, 27 अक्टूबर को वहां वोटिंग होगी और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी आवाम को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह हमने गजा पट्टी में जेनोसाइड किया, हमला किया और हमास को मजबूत नहीं होने दिया, जिस तरह ईरान हमारा दुश्मन था और उस पर जाकर हमने हमला कर दिया, उसी तरह हमारा अगला दुश्मन सीरिया और तुर्की है और उस पर भी हमने हमला किया और इसको भी हम मजबूत नहीं होने देंगे, ताकि इलेक्शन में जो हमें अवाम का वोट मिले, सपोर्ट मिले, तो इस बुनियाद पर मिले कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल को इतना मजबूत बना दिया है कि जिस तरह वो ईरान के साथ जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, उसी तरह तुर्किया से जंग लड़ने की भी उसके अंदर सलाहियत है। और सीरिया की फौजी ताकत को वो कभी खड़ा नहीं होने देगा, अस्करी तौर पर सीरिया को वो मजबूत नहीं होने देगा। अहमद अशरा के दौर का सीरिया वैसा ही बेबस रहेगा जिस तरह बशारुल असद के दौर में था। ये मैसेज देने की इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने किया, लेकिन तुर्किया ने जो पलटवार किया उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की दाल नहीं गली और उसने चुपके से मुलाकात करने की कोशिश की, मसले को सुलझाने की कोशिश की। अब तक इसराइल की तरफ से यही कहा जा रहा था कि गोलान हाइट्स के इलाकों में उसकी फौज मौजूद रहेगी, सीरिया के साथ वो बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अब चुपके चुपके उसको बातचीत करनी पड़ी है। इसराइल चाह रहा था कि इसकी खबर किसी को ना हो, लेकिन सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल मीडिया को बता दिया कि इसराइल के डेलीगेशन के साथ सीरिया के डेलीगेशन की मीटिंग हुई है और सीरिया ने अपनी चंद शर्तें इसराइल के सामने रख दी है कि इन्हीं शर्तों के साथ बातचीत होगी। पहली शर्त यह है कि 1974 में सीरिया और इसराइल के दरमियान जो माहिदा हुआ था वो माहिदा दोबारा से बहाल किया जाए। 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग में इसराइल ने मुल्क शाम के कुछ इलाका को अपने कब्ज़े में ले लिया और वो इलाका गोलान हाइट्स का है। ये गोलान हाइट्स सीरिया का इलाका है, शाम की सरजमीन है, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, अपनी फ़ौज को उतार दिया और उसके बाद लगातार इसराइल यहाँ बस्तियाँ बसाने लगा। चुनांचे सीरिया ने दोबारा इसको हासिल करने की कोशिश की। 1973 में जो तीसरी जंग होती है अरब ममालिक के बीच में और इसराइल के बीच में, तो उस जंग में मिस्र ने भी अपना खोया हुआ इलाका वापस ले लिया जिसमें जजीरा नुमा सेना है और दूसरा एरिया है, और सीरिया ने भी गोलान हाइट्स को वापस लेने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद गोलान हाइट्स में लगातार लड़ाई होती रही सीरिया की आर्मी में और इसराइल की आर्मी में। फिर यूनाइटेड नेशन ने सुलह समझौता कराने की कोशिश की और यूनाइटेड नेशन की कोशिशों से सीरिया और इसराइल के दरमियान एक माहिदा हुआ और गोलान हाइट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा इसराइल के तहत रहा, एक हिस्सा सीरिया का, और बीच में एक बफर जोन बना दिया गया जहां यूनाइटेड नेशन की आर्मी को रखा गया। दोनों तरफ से कहा गया कि दोनों तरफ फौज कम रहेगी,
फौजी साजो सामान कम रहेंगे, हथियार नहीं रखे जाएंगे। इस तरह गोलान हाइट्स को लेकर एक मुआहदा हुआ। ये 1974 का एग्रीमेंट कहा जाता है। अब जब पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 में बशार अल असद की हुकूमत का सीरिया से खात्मा हो गया, बशार अल असद को देश छोड़कर जाना पड़ा, अहमद अशरा ने हुकूमत बनाई, तो इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर गोलान हाइट्स का वो इलाका जो सीरिया का था और जो बफर जोन का था, जहां यूनाइटेड नेशन की आर्मी थी, वहां पर इजराइल की आर्मी आ जाती है। उस इलाके में इजराइल की आर्मी घुस जाती है और उसको अपने कंट्रोल में इजराइल ने ले लिया। अब सीरिया का यही मुतालबा है कि इस्राएली आर्मी को बफर जोन से वापस निकलना पड़ेगा और जो 1974 का माहदा है उस पर अमल किया जाए। रिपोर्ट यह है कि इस्राइल ने इस माहदा को, या कह लीजिए 1974 के माहदा को मानने का एक तरह से इशारा दे दिया है और ये बेसिक मुतालबा है इस सीरिया का। उसके बाद सीरिया ने दूसरा ये ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के दौरान भी कहा कि गोलान हाइट्स पूरा का पूरा सीरिया का है और सीरिया उसको इस्राइल से आज़ाद कराने की कोशिश करेगा और इस्राइल उसको नहीं रोक सकता है। जब भी सीरिया की ताकत मजबूत हो जाएगी, सीरिया के पास ऐसी फ़ौज होगी, ऐसी जंगी सलाहियत होगी, तो सीरिया अपना इलाका खाली कराएगा और दुनिया सीरिया को इससे नहीं रोक सकती है। दुनिया का कोई देश भी गोलान हाइट्स को इस्राइल का एरिया नहीं मानता है। अभी एक देश ने इस तरह का बयान दिया था तो तमाम ममालिक ने उसकी मजम्मत की आलमी नक्शे में, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी गोलान हाइट्स को सीरिया का ही इलाका माना जाता है। तो ये सीरिया ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है, या कह लीजिए सीरिया की बहादुरी है। सीरिया ने मुज़ाकरात के दौरान तीसरी अहम बात ये कही है इस्राइल के डेलीगेशन से कि सीरिया एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए, अपने डिफेंस को बेहतर करने के लिए, दुश्मनों से अपने आप को महफूज करने के लिए सीरिया जिस मुल्क के साथ चाहे डिफेंस एग्रीमेंट कर सकता है, माहदा कर सकता है और इसराइल उसको इससे नहीं रोक सकता है। और सीरिया का तुर्किया के साथ जो माहदा है वह सबसे अहम है, ताकतवर है, क्योंकि सीरिया में तुर्की का कई सारा फौजी अड्डा मौजूद है और ये बात इजराइल को भी पता है। और इसीलिए टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने आर्टिकल में इस बात पर हैरानी का इजहार किया कि जब हम्स में, हलब में, दिमश्क में और दूसरे इलाकों में पहले से तुर्की का फौजी अड्डा मौजूद है, ख़ासतौर पर जो नॉर्थ सीरिया है जहां तुर्की और इजराइल की सरहदें मिलती है, वहां तो साल 2016 से ही तुर्किया की फ़ौज मौजूद है, तुर्किया का कंट्रोल मौजूद है, तुर्किया पूरा इलाका का निज़ाम चला रहा है और ये बात दुनिया जानती है। इसके बावजूद अबू ज़हूर फ़ौजी अड्डे पर इसराइल के हमले का मतलब क्या था? इस हमले का मतलब बस पॉलिटिकल स्टंट है, उसके अलावा कुछ और नहीं। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कई मरतबा देखा जाता है, हमला क्या आता है और कहा जाता है कि सियासत के लिए सब हुआ है, कोई और मकसद नहीं था। तो उसी तरह इसराइल के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि जो इसराइल ने हमला किया था बस एक पॉलिटिकल तमाशा था, उसके अलावा कुछ और नहीं, क्योंकि तुर्किया सीरिया में बहुत मजबूत है और इसराइल उसके इन्फ्लुएंस को, असर रसूख को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो सीरिया ने साफ कर दिया इसराइल के डेलीगेशन के सामने, अमेरिका के डेलीगेशन के सामने कि वो तुर्किया के साथ माहदा करेगा और ये बात दुनिया को पता है। और तुर्किया ने सीरिया की फ़ौज को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, ट्रेन कर दिया है। सीरिया ने यह भी ऐलान कर रखा है कि वो मक्का माहदा को ज्वाइन करेगा और मक्का माहदा को ज्वाइन करने का मतलब यह है कि तुर्किया की फ़ौजी अहमियत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और इसी वजह से पिछले दिनों सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया, इस मौजू पर बातचीत हुई। तुर्की और सऊदी अरब पहले से चाहते हैं कि सीरिया भी मक्का माहदा का एक पार्ट बन जाए, इसको ज्वाइन कर ले। मक्का माहदा ने ऐसे भी अब्राहम अकड को पीछे कर दिया। अब्राहम अकड लाने का एजेंडा यह था कि तमाम आसपास के ममालिक इजराइल को तस्लीम कर ले और इजराइल अपने आप को महफूज समझने लगे, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। अब मक्का माहदा को ज्वाइन कर लेने का मतलब ये होगा कि सीरिया के साथ 3 ममालिक हर वक्त मौजूद रहेंगे और फिर इसराइल पहले वाली पोजीशन में नहीं होगा कि वो जब चाहे सीरिया पर हमला कर दे, शाम पर हमला कर दे, क्योंकि अब अगर इसराइल सीरिया पर हमला करेगा तो तुर्की भी जवाब देगा, सऊदी अरब भी जवाब देगा और
पाकिस्तान भी जवाब देगा और अमेरिका भी इसराइल को इन सब मुल्कों के मुकाबले में बचाने नहीं आएगा। इसराइल के तज्ज़िया-निगार, यूरोप के तज्ज़िया-निगार ये लिख रहे हैं बाज़ाब्ता कि ईरान की लड़ाई अमेरिका से पहले से मौजूद है, इसलिए ईरान की बात हुई तो अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, अमेरिका ने इसराइल की खातिर ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि ईरान से खुद अमेरिका बरसों से नाराज़ है, क्योंकि 1979 में ईरान का जो रेवोल्यूशन था वो अमेरिका के ख़िलाफ़ था, अमेरिकी मफाद के ख़िलाफ़ था। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत में अमेरिका का ईरान पर अमली कंट्रोल था, वहाँ के पेट्रोल और दूसरे ज़खायर का फ़ैसला अमेरिका कर रहा था। तो ये अमेरिका की पुरानी लड़ाई थी, इसलिए इसराइल को अमेरिका ने यूज़ किया है ईरान के ख़िलाफ़। ये लड़ाई तो असल अमेरिका की है, लेकिन तुर्की के साथ अमेरिका का ऐसा मामला नहीं है, सऊदी अरब के साथ ऐसा मामला नहीं है, पाकिस्तान के साथ ऐसा मामला नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसराइल को अमेरिका का कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। और इसीलिए अब इसराइल को सीरिया के साथ समझौता करना पड़ रहा है। एक और अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि जब से इसराइल बना, इसराइल ने अपने क़याम के बाद ही जंग का आगाज़ कर दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की सरज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 54% इलाका इसराइल बनाने के लिए दे दिया गया, बकिया फ़लस्तीन के लिए रखा गया। और फिर इसराइल ने हमला शुरू कर दिया फ़लस्तीनियों पर, दूसरे इलाकों पर, ताकि मज़ीद इलाकों का वो कब्ज़ा हासिल कर सके। उसके बाद 1967 में बग़ैर किसी वजह के इसराइल ने 6 अरब देशों पर हमला कर दिया, बमबारी शुरू कर दी, उर्दन पर, सीरिया पर, मिस्र पर, इराक़ पर। और इस हमले का मकसद ये था इसराइल का कि उसके आसपास जितने ममालिक हैं, जिन जिन देशों की सरहदें इसराइल से मिलती है, उनकी फ़ौजी ताकत कमज़ोर पड़ जाए, उनके अंदर जंग लड़ने की सलाहियत न रहे और इसराइल एक तरह से महफूज देश बन जाए कि उसके आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसराइल पर हमला करने की सलाहियत रखता हो, जो फ़लस्तीनियों का साथ दे सकता हो कि दोबारा फ़लस्तीन को एक मुल्क बना दिया जाए। और इतना डराया इसराइल ने हमला करके कि मिस्र को उसके साथ पीस माहदा करना पड़ा, उर्दन को करना पड़ा, बशार अल असद की हुकूमत को इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट करना पड़ा कि अब ये दोनों आपस में जंग नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उसके बाद इधर ईरान उभरता है और फिर ईरान ने इसराइल को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास इस तरह के मिसाइल हैं और हम चाहें तो तुम्हारा नाम व निशान मिटा सकते हैं। और इसी बुनियाद पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया पिछले साल और इस साल भी। अब खुद इसराइल की सरहदों से मिला हुआ एक मुल्क मज़ीद मजबूत होता जा रहा है, वो सीरिया है। इसलिए सीरिया का मजबूत होना, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है और तुर्की ने इस मामले में अहम तरीन किरदार अदा किया है। आपको भी सीरिया की मजबूती के लिए वो अस्करी तौर पर ताकतवर देश बन जाए, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।